मेरा मुर्शिद प्यारा आया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਬਾਈ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਨया ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨया ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੀਏ ਰੂਪ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ मतलब सिर्फ अंदर चुप करके साक्षी होकर बैठ जाना है, चुप करके बैठना है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ
कि अगर तुसी रात को अंधेरे में कलावा किसी चीज़ का भर के इकट्ठा करोगे तो उसमें एक चीज़ नहीं आनी है, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाना है, वो कूड़ा कबाड़ भी हो जाना है। असी मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वेदां ਵਿੱਚੋਂ भी, शास्त्रां ਵਿੱਚੋਂ भी, किताबां ਵਿੱਚੋਂ भी, कुरान ਵਿੱਚੋਂ भी, सब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿन नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ के तुसी भरना नहीं है, इन्हों पढ़न का मतलब खाली होना है। क्यों कि इन्हों तद पढ़ो जो तुसी खाली होना होवे। संतां को जाओ खाली होने वास्ते जाओ, ना पढ़ो भरन वास्ते ना जाओ। क्यों कि जदों तक तुसी खाली नहीं होवोगे उदों तक तुसी भर नहीं सकते हैं। एक गल होर भी तुसी याद रखो, तुसी ना कभी खाली हो ना कभी खाली होना है, ये भी नाल ख्याल करो। कोई खाली भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, सब के पास है। क्यों इसी वास्ते लिखा भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल ना सके ताते पे कंगाल। सिर्फ सानू गठ खोलने का पता नहीं है, जिथे भूखा कोई नहीं है। असी सारे रजे हुए हैं, फिक्र ना करो। लेकिन असी भूखे क्यों नजर आने हैं? क्योंकि असी बेसबरे हो चुके हैं। बोलो असी बेसबरे हो चुके हैं, साडे विच तमा बढ़ती जा रही है, वो तमा सानू होर भुख लाई जाती है। असल में भुखा कोई नहीं है, असल में जिथे गरीब कोई नहीं है, असल में जिथे दुखी कोई नहीं है, असल में जिथे पापी कोई नहीं है। ये मैं तुहानू साफ लफ्ज़ां च दस देना चाहना। ये समझो साडी जिहड़ी मतलब ख्वाहिशात है ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ मतलब असल ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ बढ़ा रही है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ मालिक ने बख्श ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ बहुत है। बोलो है कि नहीं? ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। शायद तुसी देखो एक जीव है कि वो अपने घर में मतलब है कोई चीज अपने जेब च पैसे रखता, इस मालिक की नगरी के अंदर, इस परमात्मा की मौज के अंदर, इस सतनाम के दायरे में असी रह के फिर असी दुखी और परेशान क्यों होइए? इस चीज के काफी दिनों तो दिमाग के अंदर एक बोझ जहा चल रहा है कि दुखी क्यों हो रहे हैं। दुखी असी इस करके हो रहे हैं कि साडे अंदर मतलब होर आदमी होर खिंचण की कोशिश असी कर रहे हैं। लेकिन असल में जिन्ना असी अंदर में होर ज़्यादा खिंच रहे हैं, जिन्ना असी उहदे नाल हुण एक बारी जिले तूफान आउंदा है तो उहदे नाल कूड़ा करकट भी चला आउंदा है। वो साडे अंदर कूड़ा कबाड़ ज़्यादा भर रहा है, करकट ज़्यादा भर रहा है। असी मतलब कूड़ नूं ज़्यादा अपने अंदर खिंची जा रहे हैं। हुण जिवें जिवें असी दुनिया दी परहेज करना है, लेकिन असी लक्ष्मण रेखा जिहड़ी साडे इंडिविजुअल साडे संतां ने ला दित्ती सी, उस असूल नूं जिहड़ा हुक्म सी साडे उत्ते गुरु नानक साहब ने उतारिया सी, उन्हां दे वचनां दे मुताबिक ये हुक्म नूं तोड़िया है। ये दायरे भी असी बनाएगा और तोड़ना भी असी है। ये ख्याल करो कि मोह भी असी पैदा किया, तोड़ना कटना भी असी है। हंकार भी असी पैदा किया, कटना भी असी है। एक ख्याल है औजार जरूर उन्हें मालिक साडे वास्ते दिते है। वो नाम का औजार दिता है, प्रेम का औजार दिता है, सबर का औजार दिता है, शुक्र का औजार दिता है। वो साडे संतां ने साडे तक प्रसाद सानू भेजा है कि आप प्रसाद खा के तुसी मतलब सही होना। सानू तोड़न की कोशिश नहीं कर रहे हैं, असी होर बंधन में फसते जा रहे हैं। जिमें जिमें तुसी इस संसार में फसते जाओगे तिवें तिवें तुहाडे ते बंधन होर सख्त होंदे जाणगे। जिन्ना तुसी इस दुनिया के अंदर अपने आप को फैलाओगे उन्ना ही प्रयास करोगे या मालिक सामने इस दुनिया तो चक ला हुण ते की रखिया है। इसका मतलब कि तुसी दुखी हो चुके हो और तुसी कहंदे कि असीं सुखी हो गए। सुखी नहीं, तुसी दुखी हो चुके हो। तो दुखी होकर तुसी पुकार करते हो पर तुहानू इस गल का पता नहीं। उन्हें चकना तो है ही है, उन्हें तो आपे ही चकना है। तुहानू इहदे विच की बयान करने की जरूरत है? साडियां फरियादां भी गलत हो रही हैं, साडियां चीज़ां सारियां पुठियां पै चुकी हैं क्योंकि असी तो प्रार्थना भी करते हैं, आरती भी करते हैं, वो मतलब गलत कर रहे हैं। और जो कुछ असी परमात्मा को देना चाहते वो भी असी गलत दे रहे हैं। क्यों कि असी एक आदमी मतलब कल फुल तोड़ के परसों साडे को लिया, उन्हें मत्था टेकिया। मैं क्या तू ये फुल काहदे वास्ते तोड़े? तो कहता जी भगवान दे के जब रब दे प्रसाद चढ़ाउण वास्ते। मैं क्या जिस दरखत के उत्ते खड़ाए सी वो प्रसाद माड़ा सी, उन्हें आप उसके उत्ते चढ़ाए सी। बोलो उत्थे खड़ाए सी, वो भी उहदे अगे चढ़े हुए सी। हुण तां तोड़ के तू मतलब खुदा का भी और परमात्मा का दोनों का अपमान कर दिता, दोनों का अपमान किया है। ये चढ़ाए नहीं था, इसका मतलब अपमान किया। तेरे दिल में जरूर शांति आ गया पर जिस दरखत को फुलता तोड़िया है मालिक ने दिल में कितने सारे बच्चे खिड़िया था मैं सी, वो कुदरत खिड़े हुए जड़े फुला फुल चढ़े हुए। ऐसी नहीं बात है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ मतलब कोठड़ियां सारियां ओदी
बदली जा रही है, साढ़े धूप तो खाना नहीं बात बन गया, वो सुगंधियां ओदी बदली जा रही हैं। मैनू मतलब श्री गुरु रविदास जी की बाणी विचों एक चीज बहुत प्यारी मिली है, जिसमें आरती कहते हैं कि नाम तेरो आरती मदन मनारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। उन्होंने आरती बड़े तरीके, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लगा माए पसारे। उन्होंने क्या कि बात दीवे जलाने की जरूरत नहीं है, तेरा नाम ही एक चिराग है। तेरे नाम के अंदर, नाम का मतलब की है वो बहुत बार समझा चुका है, नाम असल में परमात्मा ही है, नाम वो आनंद है, नाम वो खुशी है। जेड़ा तुसी कई बार देखा अगर किसी जगह से तुसी जाके चिराग करते हो तो तुहानू थोड़ी देर वास्ते आनंद आउंदा, बोलो आउंदा कि नहीं, लेकिन जे तुसी उस आनंद नू थोड़ा जिहा अभ्यास करो, वो अपने अंदर चिराग रोशन करो, वो चिराग मतलब परमात्मा के नाम से तुसी अपने अंदर रोशन करोगे तो तुहाडा आनंद सदा वास्ते बन जाएगा। इस वास्ते उन्होंने कहा कि मैं जिहड़े बाहर दे चिराग है इन्हां दी गल नहीं करता, तेरा नाम ही असल में चिराग है, तेरे नाम का ही तेल साडे अंदर जग रहा, तेरे नाम की ही बत्ती होनी चाहिए है और तेरे नाम का ही चिराग होना चाहिए। हम तिन्ने चीज़ां जदों ओहदियां हो गईयां तो फिर वो रोशनी भी तो ओहदी हो गई, होर तां किते दी ना हो गई। हुण असीं चिराग का मिट्टी का लै लिया, तेल असीं सरसों का कढ़ लिया, बत्ती असीं रूह दी पा लई है, ये तिन्ने चीज़ां अलग हो गईयां, बोलो हो गईयां कि नहीं। जिस जिस दीवे दी जिस चिराग की गुरु रविदास जी ने गल की है, वो चिराग ना कभी बुझिया है ना कभी बुझना है, ना कभी तेल मुकना है ना कभी बत्ती मुकनी है, सिर्फ एक बारी क्षमा रोशन करने की देर है, पर रोशन भी गुरु कृपा की नाल होनी है, क्योंकि वो रोशनी तो साडे अंदर मौजूद है, लेकिन वो उदों मतलब जगेगी, उदों असीं उस रोशनी तक पहुंचांगे जिसले गुरु की कृपा होगी। जेकर संत ना आउंदे जगत विच तां जल मचदा संसार, क्योंकि ये असीं साडे सारिਆਂ ਦੇ दीवे असले बुझे हुए हैं। तुसीं इह ना कहो कि साडे दीवे जग रहे हैं, जदों साडे दीवे जग गए तो फिर साडे विच ना लड़ाई रहनी है, ना फसाद रहना, ना कोई हिंदू का सवाल रहना, ना कोई मुसलमान का सवाल रहना है। कौन मतलब लुको के रखेगा, कौन छेड़ेगा, कौन देवेगा, क्यों कि सबके अंदर एक अगम्य जोत जग रही है, वो मतलब प्रशांत सबके अंदर वर्त रहा है। उन्होंने मतलब देखो नाम तेरो तागा नाम फूल माला, उन्होंने क्या जेड़ा तागा है वो भी तेरा नाम है और जेड़े फूल है वो भी तेरे जलाए हुए खिलाए हुए तेरे नाम से है। साडे अंदर वो फुल खिलने चाहिए है, साडे अंदर तुसी कभी तुहाडे अंदर दा फुल नहीं खिलिया, जिन्हां दे अंदर दा फुल खिल गया है उन्हां नूं बाहर दे फुल्लां दा कोई मतलब ही नहीं रह जांदा है। जिन्हां दे अंदर महक चल गया बाहर कभी धूप नहीं दिखाउंदे है, जिन्हां दे अंदर चिराग रोशन हो गया बाहर मजारां ते जां कबरां ते जाके चिराग नहीं करदे है। उन्हां नूं पता लग चुका है कि मेरे अंदर जिहड़ा ठाकुर द्वारा जां मंदिर जां मस्जिद जां मसीत है, मेरे अंदर जिहड़ी परमात्मा वाली जिस विच वो खुद एक खुशबू है, असीं ओहदे के किहड़ा धूप दिखाउने हो, वो खुद ही मतलब एक आनंद है, असीं ओहदे वास्ते किहड़ा आनंद बाहर लभदे फिरदियां है और मतलब वो उपरों ओहदे विचों ही उठदियां है, ओहदे विच ही समाई जांदियां है, वही आनंद उन्हां दा चल रहा है। इसी तरह साडे अंदर परमात्मा दा प्रकाश चल रहा है, साडे अंदर एक आनंद चल रहा है, साडे अंदर एक लहरां चल रही है। तुसीं ख्याल करके नहीं देखिया कि तुहाडी एक लहर दूजी लहर नाल जोड़दी है, एक घटाउंदी है, एक तुहानूं वधाउंदी है, पर असीं उन्हां लहरां दे विच फस के समझदे कि असीं समुंदर बन गए हैं। असीं हाले समुंदर नहीं बने हैं, असीं हाले लहरां ही बने बैठे हैं। असीं लहरां दे भुलेखे च बैठे हैं। जिन्हों 4 अखर आ गए वो कहण लगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हाँ, जिन्हों कुछ माड़ी जी अकल आ गई वो दूजिया की कोशिश कड्ढण दे नुक्स कड्ढण की कोशिश करता है। पर मैं तुहानूं इक्को ही गल दस दिंदा हाँ, मैं अकलमंद उसनूं कहना हाँ, मेरे गुरुआं ने मेरे पैगंबरां ने संतां महात्मा ने उसनूं अकलमंद किया है, मेरे प्यारे रहबर गुरु रविदास जी ने उसनूं अकलमंद किया है, जिहड़े दूसरे दे नुक्स कड्ढण की बजाय जवान बंद करके चुप करके अपने अंदर उतर गए, जिन्हां ने अपने अंदर देखिया, जिन्हां ने अपने आप को पाया। हुण आओ असीं उन्हां दी सच्ची बाणी की तरफ चलीए, असीं मतलब उन्हां दे मिशन की तरफ चलीए कि उन्हां ने सानूं किहड़ा रस्ता इहो जिहा दित्ता, किहड़े तरीके नाल ओह इत्थे तक पहुंचे। जब श्री गुरु रविदास जी इत्थे तक पहुंच सकते तो असीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब गुरु नानक देव जी तक पहुंच सकते तो असीं भी पहुंच सकते हैं, जब कबीर जी पहुंच सकते, महात्मा बुद्ध पहुंच सकते तो असीं भी पहुंच सकते हैं। ये अज तो ख्याल छड्ड दिओ कि तुसीं नहीं पहुंच सकते हो, तुसीं उस आनंद नूं नहीं प्राप्त कर सकते, तुहाडे अंदर जोत नहीं जग सकती। असल विच आओ असीं मतलब डर जाने हाँ, असीं मतलब पिछे नूं हट जाने हाँ, क्यों
कि मैं तुहानूं इक्को ही गल दस देना, मेरे पास कई जीव आउंदे आ, भजन करन बहिंदे आ, जिस वेले थोड़ी देर वास्ते जिले अंधकार उन्होंने नजर आउंदा, एकदम अखां खोल के बह जांदे, कहंदे बाबा जी तुसीं तां किहा सी अंदर बहुत प्रकाश है, इत्थे तां अंधेरा ही बहुत है, इत्थे तां मतलब हनेरा ही हनेरा है। भाई एक गल याद रखो कि तुसीं दुनिया दे वड्डे प्रकाश चों आए हो, हाले तक जिहड़ा तुहाडा असल प्रकाश है वो अंदर दबिया बैठा है। पहला तुहानूं अंधेरे च ही गुजरना पैना है, फिर प्रकाश मिलेगा। सारिਆਂ ਨੂੰ खास करके ख्याल रखो, क्यों जब तक तुसीं अंधेरे नूं नहीं पहला समझोगे, रोशनी नूं की समझ सकोगे, तुहानूं प्रकाश का पता नहीं लग सकेगा। जब तक तुसीं मतलब है कि जिहड़ी सुन अवस्था है, जिहड़ी मतलब मौन अवस्था है, निर्विचार अवस्था है, जिहड़ा अभ्यासी लोग जिहड़े भजन करने वाले जिहड़ा सत्संग नूं गौर नाल सुनने की कोशिश करियो, समझ गया कि नहीं। जिहड़ी निर्विचार अवस्था है, जिहड़ी मौन की अवस्था है, वही अवस्था सानूं शब्द नाल जोड़दी है। क्यों कि शब्द नाल जोड़न दा वो सानूं आवाज़ तदे सुनाई देवेगी जदों असीं मौन होवांगे, जदों असीं चुप होवांगे, जदों साडे विचार खत्म होणगे, तो फिर मतलब वो अवस्था तक असीं पहुंचांगे। असीं भजन करते करते रौला पाउंदे पाउंदे उस तक पहुंचना चाहुंदे हां, पर रौले विच नहीं कदी कोई पहुंचिया है। रौला जिहड़ा है ये साडे मन दे अंदर, तुसीं एक रौला नहीं है, तुसीं कई जी विच बैठे हो, भजन करने वाले, बंदगी करने वाले, और मतलब भजन और बंदगी एक मतलब जिस वेले भजन करते हो, एक तो तुहाडा अपना भजन का रौला हुंदा है, दूजा अंदर मन का रौला हुंदा, तुहाडे अंदर गूंज रही है, जिहड़ा अंदर घंटे और शंख की आवाज़ आ रही, जी बीन सितार बज रही, बीना बज रही है, जी कृष्ण की बंसरी अंदर बज रही है, वो हाले तुहानूं सुनाई नहीं दे रही है। आ गई समझ कि नहीं। क्यों कि वो बंसरी तो उदों सुनाई देवे जो तुहाडीआं बंसरियां वजनों बंद हो जाणगीआं। आ गई समझ कि नहीं। हुण तुसीं तां अपने बैंड बजा रहे, तो वो आवाज़ कितों सुनेगी अंदरों, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਵਿचार होना पैना है। और ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ तरीका है, श्री गुरु रविदास जी ने बहुत सुखाड़ा तरीका सानू दसिया, पर किसी ने समझने की कोशिश नहीं। उन्होंने इस तरह कही है कि जिहदे अंदर प्रेम है ਉਹਦੇ अंदर ही ध्यान हो सकता, वही भजन कर सकता है। जिहदे अंदर प्रेम नहीं है वो भजन नहीं कर सकता। अज तो लिख लो सारे जने, क्यों भजन और ध्यान का एक संबंध है, भजन और ध्यान का एक जोड़ है। और ध्यान जिहड़ा है, प्रेम जिहड़ा, प्रेम और ध्यान लफज जिहड़ा है ना, ये मतलब दो चीज़ां सानू लाजमी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पहला प्रेम करो, फिर तुहानू ध्यान मिल जाए। प्रेम निकलना है जिसले तुसी मतलब है कि प्रेम नू मतलब शुरू करोगे तां भी ध्यान मिलना है, ध्यान नू शुरू करोगे तां भी प्रेम मिलना है, क्योंकि दोनों का एक जोड़ है। और असल में प्रेम ही एक परमात्मा का रंग है, वही एक आनंद है। जब तक दिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्योंकि जिन्हां दे अंदर प्रेम ना रखना लिया, वो प्रेम की करता है, जरा ख्याल जरा सोच, एक ते खड़ा करता है, वो एक नाल सानू जोड़ता है। और एक नाल पहला जोड़ेगा, फिर की करेगा, फिर प्रेम एक होर अगला कदम पुटेगा, अगला कदम वह विशाल कदम होगा। एक ते जोड़ना छोटा कदम है, पहला वो गुरु नाल जोड़ेगा, अपने महबूब नाल तुहानू जोड़ेगा, ते बाकी जिन्ने कुछ है सारियां नालों तोड़ देगा। गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई चलता फिरता आदमी नहीं है, गुरु कोई किसी जात में नहीं है। गुरु वही निर्भव है, निर्वैर है, गुरु वही अकाल मूर्त है, गुरु वही अजूनी सहबंग है, गुरु जून तो बाहर है। ये खास करके ख्याल रखना, ये वजूद की चीज़ है। वजूद का सानू भुलेखा देने वास्ते एक भरम है एक, क्योंकि अगर वजूद ना बनता तो सानू मतलब गुरु का पता नहीं लगना सीगा। इस करके ये सूरज की चीज़ है, ये सूरज भी सानू भुलेखा ही है। असल सूरज रोशन नहीं है, ਇਹਦਾ एक भुलेखा है। साढ़े सामने एक सूत्र है, साढ़े सामने एक मतलब चीज़ आ रही है, एक मतलब जरिया साडा बन गया है, लेकिन जरिया ही असल में उत्ते सानू पहुँचाता है। तो वो जो प्रेम है, जिसले गुरु के अंदर जाके तुम चले जाओगे, फिर गुरु जोड़ा है वो बाहरी तौर पर तुहानू एक नज़र आता है, वजूद के तौर पर तुहानू एक नज़र आता है। एक ओंकार, क्यों ये लफ्ज में जरा असीं समझना है। श्री गुरु नानक देव जी का बहुत प्यारा लफ्ज है, और इस लफ्ज नूं, इन्हां वचनां नूं जिसने समझ लिया उसके सारे भुलेखे दूर हो गए, वो सब चीज़ों तो निकल गया। एक ओंकार, क्योंकि असीं परमात्मा नूं एक करके पूजे, पर परमात्मा एक नहीं है, ऐ तो ख्याल करो। परमात्मा एक चीज़ नहीं है। जे परमात्मा एक होंदा तो हिंदू चक के दौड़ जाते, या मुसलमान चक के दौड़ जाते, या होर कोई चक के दौड़ जाते, दूसरे के हाथ ही ना आउंदा। बोलो ठीक है कि नहीं? गल समझ आ गई कि नहीं? मतलब परमात्मा नूं चक्कण वाले बड़े मिल जाने थे, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर असी मतलब परमात्मा नूं नहीं, परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा एक जिहड़ी एक वो शक्ति है, एक वो मतलब नाद है,
एक वो ध्वनि है, लेकिन एक वो रंग है। जिस तरह एक रंग सफेद है, सारी दुनिया च केड़ा रंग है? एक गल एक ही रंग सफेद है, चिट्टा रंग है, वाइट कलर है, सफेद रंग है, लेकिन उस रंग विचों बाकी रंग निकले है। ये ख्याल करो, जेकर सफेद रंग ना होंदा दुनिया ते कोई रंग ना होंदा। ਇਹਦਾ मतलब की है कि वो एक ओंकार जिहड़ा अगर सतनाम ना होंदा तो फिर दुनिया के उत्ते ये कुछ भी ना होंदा। आ गई समझ कि नहीं? वो क्योंकि सत है, आदि सत, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच है। अगर सच ना होंदा इत्थे झूठ भी ना होंदा, अगर सच ना होंदा इत्थे कुछ भी ना होंदा। वो सच जिहड़ा है वो एक है। सच हुण सफेद है, सच की है? वाइट है, एकदम सफेद है। सफेद की एक प्रकाश है। प्रकाश की है जिहदी कोई जात नहीं है, जिहदा कोई धर्म नहीं है, जिहदा कोई कौम नहीं, जिहड़ा ऊच नहीं, जिहड़ा नीच नहीं, जिहड़ा मंदिर च नहीं, जिहड़ा मस्जिद नहीं, जिहड़ा गुरुद्वारे च नहीं, जिहड़ा हिंदुओं च नहीं, मुसलमानों च भी नहीं, जिहड़ा सब दे अंदर है, जिहड़ा सब विच भी है, जिहड़ा सब थाई रिया समाए, वो भी सब थाई भी रिया समाए। जर्रे जर्रे विच भी वो प्रकाश है, लेकिन जर्रे विच प्रकाश है भी नहीं है। क्यों? कि जदों साडे अंदर वो प्रकाश है लेकिन सानू अंधेर नजर आता है। क्यों? कि इस करके जदों तक असी मतलब मैं कह के बुला रहे हैं उदों तक तुहानू प्रकाश नहीं दिसेगा, जदों तक तुहाडा प्रेम सीमित है। उत्थों आके मैं अगला पॉइंट जो बोलना चाहना उन्होंने जरा समझो थोड़ा जिहा कि जिस वेले प्रेम एक ते एक ओंकार असी एक दे उत्ते कीता ते फिर वो ओंकार दे अंदर जिले तिन्ना रूपां च बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु और खिदों खोल लीरा ना दिखाड़ काजिया, खिदों खोल लीरा ना दिखाड़ काजिया, इस गोल मोल रब नू संभाल काजिया। वो कहते तू तो एक मतलब जिदा हुण तो चलो बच्चों को खेडण वास्ते पहला गरीब आदमी या किसी तरह ला लो कि मतलब वो लीरा कट्ठियां करके तो जी खिदों बनाया जाता सी, न्याणे उहदे नाल खेलदे हुंदे सी, विच रंग बरंगियां लीरा हुंदियां सी, होर कुछ नहीं हुंदा सी। ते असीं की चीज़ है? रब तां चलो खिदों दीयां लीरा भी होणगियां, मैं मन लिया, लेकिन असीं तां कुछ भी है नहीं, असीं तां कुछ भी है नहीं। असीं तां सिर्फ एक प्याज है, एक गंढा है, एक प्याज है, असीं होर कुछ नहीं। एक ऑनियन है, ऑनियन मीनस प्याज हुंदा है, प्याज है, असीं वो छिलकियां की तरह हाँ। ये जिन्ने भी धर्म है, जिन्ने भी मिशन है, जरा गौर करके लफ्ज़ों में सुनो, जिन्ना भी इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ प्याज का छिलका है। की है? प्याज का छिलका है। जदों इनू प्याज के छिलकियां तुसीं प्याज हथ फड़ लो तो छिलके लाई जाओ, परता लाई जाओगे, लेकिन पिछों थल्लों कुछ नहीं निकलना। बोलो कुछ निकलेगा? शून्य निकलेगा। बस अगर तुसीं इन्हां दे सारियां परतां फाड़ के देखते जाओ तो फिर तुहानूं विचों कुछ भी नहीं मिलना। बोलो की मिलना है? बस वो जिहड़ा कुछ नहीं मिलिया, सुनते हो, जिहड़ा कुछ नहीं मिलिया वही सब कुछ है। ये नुक्ता है, जिथे कुछ भी नहीं है उत्थे सब कुछ है। ये कुछ भी नहीं जिहड़ा लफ्ज़ है ना, यही सब कुछ है। अगर कुछ भी ना हुंदा तब भी सब कुछ हुंदा। बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा? क्यों? कुछ भी नहीं जिहड़ा है ये भी तो कितों बनया है ना। बोलो बनया है ना। ये ना सोचो कुछ भी नहीं, नहीं नहीं लफ्ज़ जिहड़ा कुछ भी नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਲਬ कृष्ण ਨੂੰ और राम ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ये सारे ਜਿਹੜੇ आए सिर्फ वही राज खोलने वास्ते कि कुछ भी ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कुछ भी नहीं वही सब कुछ है। पर कितना है ये जरा देखना है। और देखो ਤੁਸੀਂ कई बार ये गल बड़े गौर ਨਾਲ सोचो कि कुछ भी नहीं ਜਿਹੜਾ है ये प्रकाश कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकाश है सब कुछ। क्योंकि ये प्रकाश के ਜਿਹੜੀ मतलब एक शब्द कुछ भी नहीं है। ਹੁਣ जो ਅਸੀਂ बोल रहे हैं अगर देखा जाए कुछ भी नहीं है। बोलो है तो सब कुछ किया भला चुप। बोलो सब कुछ किया चुप। मैं महात्मा बुद्ध की किताब पढ़ रहा था एक दिन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज लिखी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ कि महात्मा बुद्ध अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ एक दिन भी नहीं बोलिया। बोलो 45 साल उन्हें प्रचार किया और सारी दुनिया से एडे बड़े उन्हें सेवक है, मिशन फैलिया, फिर बगैर बोले तो हो गया। बोलो एक दिन वो महात्मा बुद्ध जा रहा ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ।
गल खत्म हो गई। अच्छा फिर अगे चले गए, दोपहर हो गई, दूजा जी मिलिया, कहता जी रब हैगा, वो कहता रब है नहीं। दूजे नूं कहंदा रब है नहीं, एक नूं कहंदा रब हैगा, दूजे नूं कहंदा रब है नहीं। शाम पै गई, तीजा मिलिया, वो कहंदा जी रब हैगा, उसे चुप, बोले ही चुप कर गए। चुप करके खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे। वो जिन्हें पूछया सी मत्था टेके चला गया। आ गई समझ कि नहीं? वो चेला जिहड़ा नाल सी बड़ा हैरान होया भी चंगा है महात्मा बुद्ध अपने आप को कहंदा, एक नूं कहंदा हैगा, एक नूं कहंदा है नहीं, एक बारे बोलिया ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਕਰਮਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਂਦ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾਸਤਿਕ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜ ਔਰ ਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਔਰ ਜੋੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਔਰ ਜੋੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਹਿੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਤਿਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਕੜ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਠੇ ਚਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਚਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹੀ ਜਗਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜਗਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਬੋਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲਬ ਕਾਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦੇ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਾਤਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਗੇ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਚਿਆ, ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਿਆ? ਬੋਲੋ ਮੀਰਾ ਨੱਚੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਨੱਚਣਾ ਉਹ ਸੀ ਨੱਚਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਚੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨੱਚੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਨੱਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੱਚਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਆਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੀਏ? ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲਓ ਆਨੰਦ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਔਰ ਔਰਤ ਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਤੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਪਾ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਪਾ ਲਓ। ਜਦ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਜਦ ਧੰਨੇ ਨੇ
पत्थर विचों पा लिया, तुसीं नहीं पा सकते। पर नहीं, ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਹੋ, ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਹ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਹ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਚਾਂਦ ਜੁਗਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵੇਂ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਹੋ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ, ਅੱਗ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਮ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ, ਇਰਾਦੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਦਣ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਥੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਗੈਸ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੋਕਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬੇਅੰਤ ਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਗ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਔਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇਪਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ 4 ਆਨੇ ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਪਵੇਗੀ? 4 ਆਨੇ।
ਗੋਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਵਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। जरा ख्याल करके देखो, चवानी पिछे ਅਸੀਂ लड़ रहे हैं। एक चवानी ਹੁੰਦੀ भी की है, पर एक गल याद रखो, इस चवानी के फेर ने सानू बहुत कुछ घुमा के रख दिता है। हुण तुसीं आप ही देखो कि ये जिंदगी किन्ने क दिन दी है। जरा सारे सोचो किन्ने क दिन दी, किन्ना क टाइम है तुहाडे कोल, किन्ना क वक्त है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ अगर सूरज आसमान तो ठंडा हो जाए ना, ऐसे सारे बैठे सारी दुनिया सारी मखलूक ठंडी हो जाएगी। एक पल नहीं रखना बोलो। और एक दिन होना भी जरूर है। ख्याल करो, एक दिन सूरज ने ठंडे होना है। इस्लाम धर्म इनू यही चीज दस रहा है कि एक दिन क़यामत रोज आना है। सूरज ने अपनी रोशनी छड़ देनी है, आसमान फट जाना है, उड़ जाना रूई की तरह। उड़ना उड़ाना इतने की है, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਊਰਜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ? श्री गुरु रविदास जी सानू यही चीज समझाने वास्ते, गुरु नानक साहब यही चीज समझाते हैं। लोग कहते पे कई जीवन का ख्याल होता कि जो मुसलमानों तुसीं मनो तो तुसीं पापी बन जाओगे, नरकां में चले जाओगे। पहले गल दसो कि मुसलमान का मतलब नहीं किसी को पता कि मुसलमान हुंदा कौन है। मुसलमान किसी धर्म का नाम नहीं है। मुसलसल ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੋਮਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। आ गई समझ के नहीं? मुसलमान कोई कौम नहीं है। ये कौमा हुण चमार कोई कौम है? बोलो आधारी कोई कौम है, सिख कोई कौम है, हिंदू कोई कौम है, मुसलमान कोई कौम है या ब्राह्मण कोई कौम है? हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਈ ਸਭ ਪੱਤੇ ਗਿਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ। ਪੱਤੇ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਪੱਤੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪੱਤੇ ਆਖਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਉਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। बोलो जे मतलब है कि सतयुग में या द्वापर में त्रेते में झूठ नहीं बोलते थे तो फिर महात्मा बुद्ध पत्थर के ना मारे, यीशु ਨੂੰ फांसी क्यों दिता गया, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ क्यों चढ़ाया? बोलो मसीह ਨੂੰ ਸੂਲੀ क्यों चढ़ाया? ਇਹਦਾ मतलब नफरत सी, बैरबोल सी विच, हंकार सी विच ना, कदे ना। ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर मतलब कृष्ण के अपोजिट लोग क्यों होए? राम ਨੂੰ मतलब फिर दसिए क्यों ਦਿੱਤੇਗਾ? राम के अपोजिट लोग क्यों होए? फिर बोलो फिर उस वेले लड़ाई झगड़े क्यों सी? मैं कहा तू तो भाईया मेरे बुजुर्गा सतयुग और द्वापर त्रेते ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
पिछले सत्संग में कई बार पिछे जुमेरात का सत्संग थी डेरे के अंदर, तो उधर मालक दस रहे थी कि मतलब ज्यादा मतलब तुसी कहने पे आदमी बुरे कर्म करता है, आदमी जनाकारी करता है, नहीं फरिश्ते भी करते, देवते भी करते हैं। क्यों कि बोलो इंद्र लोग तो उतर गए। इसका मतलब आदमी तो फिर ख्याल रख गया कि मतलब चलो किसी गरीब ਨੂੰ ਢਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? जिस जन्नत की गल करते मेरे मुसलमान वीर, वो मतलब उस स्वर्ग जन्नत में जाकर सुखी रहेंगे? नहीं, उत्थे होर स्यापा है। ऐसे हाले तुहानू आजादी है, बोलो है? ऐसे तुसी नाम जप के परमात्मा नू प्रगट करके तुसी आनंद लै सकते, उत्थे तो हुक्म थले वध जाना जाने। बोलो ठीक है ना? स्वामी जी महाराज मतलब गल क्या करते होंगे सी, स्वामी शिवदयाल जी गल कहते होंगे सीगे आगरे वाले संत कि देखो कि आदमी इत्थे जिहड़ा दुनिया के अंदर इत्थे लोहे दी बेड़ियां है तो स्वर्ग में जाके सोने दी पैसे। गल तो एक ही है, बोलो दो तो नहीं है। बहुत सोहनी गल मैंने जची उन्होंने दी गल कि उत्थे सोने दी बेड़ियां है तो बेड़ियां ही ना, चाहे ए क्लास का कैदी है, चाहे बी क्लास का, चाहे सी क्लास का, है तो कैदी ना। रिहा तो जन्म मरण दे चक्कर में, रिहा तो आवागमन दे अंदर ही, जे मेरी जगह है। बोलो हुण घर चलता उत्थे भी कहूगा मेरी जगह है, पद्धरे बैठा भी कहूगा मेरी जगह है। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। आओ बेगम, जिसे सिर्फ आनंद ही आनंद है, जिसे खुशी ही खुशी है, जिसे एक मस्ती ही मस्ती है। तो उस जगह से पहुंचने वास्ते हुण मैं फिर मुड़ के उस स्टेज से पहुंचा तो तुहानू लै खड़ा कर दा के प्रेम दे उत्ते कि उत्थे पहुंचने वास्ते सब तो पहला तुहानू प्रेम की जरूरत है। प्रेम, और प्रेम जिहदे अंदर नहीं है वो ध्यान नहीं उहदा लग सकता, भजन नहीं बन सकता। जब तक ध्यान नहीं जुड़ेगा तब तक भजन नहीं बनेगा। बोलो ध्यान लाजमी, सुरत शब्द जोग। कबीर साहब ने कहा सी अपनी सुरत नू शब्द दे विच जोड़ना, ये जोग है, ये तरीका है सुरत नू शब्द विच लीन करना। और ये बगैर ध्यान तो हो नहीं सकती, और बगैर प्रेम तो हो नहीं सकती। जब तक तुहाडी लगन नहीं होगी, जिस नाल तुहाडा प्यार नहीं होगा, उन्हें याद भी किद्दां करोगे? बोलो करोगे उन्हें याद? क्योंकि सब तो पहले उन्हें याद करने वास्ते प्रेम की जरूरत है। और ये खुशी की चीज है, ये बहुत बड़ी खुशी है। ये पहली पौड़ी चढ़ चुके हो तुसीं, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, फिर हौली हौली वो जिहड़ा है कल्ब अंदर उतर जाएगा, दिल विच उतर जाएगा, हिरदे विच जाएगा। इसदा आह दिल छोटा जिहा इहदा धुख नहीं है, इहदा साह नूं अंदर बाहर करन नूं, फेफड़े साफ करन नूं, खून नूं साफ करन वास्ते एक पुर्जा है। ये दिल साह वो है जिहड़ा साह तुहाडे ख्यालां नूं फैला रिहा, जिहड़ा तुहाडे अंदर बुरे जिहड़ा सुनो अभ्यास करने वाले भजन करने वाले जीव जो जिथे गुरु नानक साहब जी साह की गल करते हैं, जिस साह नूं श्री गुरु रविदास जी ने रोकिया है, वो साह उस साह दे नाल साडे ख्याल चलदे गए। वो साह साडा सानू आंतरिक तौर ते सूक्ष्म विच जाके फैला रहा है। ये साह तां सानू सिर्फ चला रहा है, ये तां वजूद नूं चला रहा है। ये साह नूं तुसीं असीं इस साह नूं भी कहंदे असीं लै रहे हैं। बोलो की कहंदे आ? असीं लै रहे हैं। असीं मैं लै रहा साह, जे तुसीं लै रहे हो तुसीं कदी मरोगे ही नहीं। बोलो तुसीं साह रोकणे नहीं देने। बोलो मरे क्यों? जे तुसीं साह लै रहे तो मरे क्यों? बोलो सवाल है इस चीज़, तुसीं साह लैंदे तो मरे क्यों? तुसीं साह ना रोकण दिओ। पर नहीं, साह जिहड़ा है ये तुहाडे वजूद नूं चलाउण वास्ते ये बाहरी ऑक्सीजन खिंच के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढ रहा है, तुहानूं फ्रैश करके चला रहा है। लेकिन वो जिहड़ा साह है एक नाद अगम्मी बजिया जिहड़ा साडे अंदर शब्द है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸਾਹ। ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹ ਸਾਡਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹ। ਉਸ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਸ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੋਲਕ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਲੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। शब्दे शब्द भया प्रकाश सकली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घट आछे। वो जो श्वास है वो रेत के जर्रे विच भी जा रहा है, वो मतलब हर चीज विच श्वास गुजर रहा, वो है श्वास, वो आत्मा का श्वास है, वो है असल हकीकत। उस श्वास से काबू पाना है जिहदे विचों मतलब वो चीज़ां निकल रही है, जिहदे विचों ये सारा मतलब ख्याली चीज़ां निकल रही है। और दूसरे लफ्ज़ों में परमात्मा की चीज है। परसों रात बैठे थे, जीवन ने एक सवाल किया, परमात्मा की, परमात्मा एक सिर्फ अनुभव है, परमात्मा साडा स्वभाव है। की है? साडा स्वभाव है, और कुछ नहीं। जो साडा स्वभाव है, असी अपने स्वभाव नूं नहीं कभी परखिया। बोलो, परखिया किसी ने? पर असी स्वभाव नूं कित्थे ले जाते हैं? तुसीं कहंदे शराब पीना स्वभाव बन गया, झूठ बोलना स्वभाव बन गया। बोलो, ये स्वभाव नहीं है, आदत है। नहीं समझे? ये जरा मतलब झूठिया चीज़ा, हेरा फेरी करनी, बेईमानी करनी, हरामखोरी करनी, शराब पीना, मतलब निंदा करनी, चुगली करनी, ये एक ही चीज है। ये साडी स्वभाव है, ये साडी आदत बन गई है। जिस तुम इसे काबू पा लोगे, तुम मतलब तो छुट जाओगे। बोलो, छुट जाओगे? ख्याल करो, छुट जाओगे। लेकिन जो असल स्वभाव है उतो तुम छुटोगे कि तुम्हारा स्वभाव परमात्मा है। गल समझ आई सारे? हाले नहीं समझ आई, मेरा ख्याल नुकता समझ गया। साडा स्वभाव परमात्मा है, परमात्मा तो छुट नहीं सकते हैं। साडा स्वभाव प्रकाश है। बोलो, खुले लफ्जों बता रहे हैं, साडा स्वभाव प्रकाश है, साडा स्वभाव आनंद है, साडा स्वभाव खुशी है, साडा स्वभाव एक सरूर है, साडा स्वभाव एक मस्ती है, साडा स्वभाव एक समाधि है। ये है समाधि, सहज अवस्था। थानू सत्संग बहुत मुश्किल मिलना है ज्यादा। हाँ, समझ के नहीं, बड़े गौर ना समझो। साडा स्वभाव समाधि है, साडा स्वभाव परमात्मा नाल जुड़ के परमात्मा वर्गा होना है। बोलो, आगे समझ के नहीं? साडा स्वभाव वाहेगुरु है, तुहाडा वाहेगुरु होर कोई नहीं, तुहाडा आंतरिक स्वभाव है। और तुहाडा स्वभाव तुहाडा नहीं है, तुहाडी आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्म, तीन सुर विचारा। आत्मा परमात्मा की अंश, अंश नहीं है। यही तो गल इतों दी फेल हो गया सारे जने। असीं लै बैठे अंश नूं, अंश कभी भी टुट सकता। बोलो, अंश कभी भी टूट सकता है, अंश मिल सकता है। लेकिन जो होवे सर्वव्यापी जाएगा तो फिर बाहरों नवे पत्ते, नवियां कंपना, नवे फुल और फल लेके आवे। आगे समझ के जो तक के सिमटिया रहे फैल जाएगा, फिर एक हद वो भी आएगी कि एक दिन ऐसा होना, हंकारी हो जाना, उले के पत्ते झड़ने। बोलो, उले के होना पत्ते झड़ने शुरू हो जाए, फुल डिगने शुरू हो जाए, फल भी पक्के डिग पड़े, उले का हंकारी हो जाना, अपने तो बाहर हो जाना, दायरे तो बाहर हो जाना, कुदरत ने फिर मुड़ के समेटना है। उदों ही असीं दुखी हुंदे आ जदों असीं अपने तो बाहर चले जाना। जे तुसीं फुल खिड़दे देख रहे हैं, अपने विचों फुल खिड़दे देख रहे हैं, अपने अंदर आनंद देखना है, अपने परिवार में आनंद देखना है। जिस दुनिया दे विच आनंद देखना तो पहले अपने विच सिमटो। बोलो, जदों तुसीं सिमटोगे, जिहड़ी ऊर्जा बाहर इकट्ठी हुई है, फैल गई है, वो तुहाडे विच आ जाएगी। जदों फोर्स बढ़ के निकलेगी, तुहानूं आनंद मिलेगा, खुशी। आज साडे संतां दा मिशन इस करके मर के तुहानूं मिलना है। अपने विच बढ़ो, क्यों? अपने अंदर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। बढ़ो अपने अंदर। सब तो बड़ा तरीका एक ही है, गुम अपने आप च हो जा तू, गुम अपने आप च हो जा तू। ओनू लभना है तो खुद खो जा, ओनू लभना है तो खुद खो जा तू। यही राह है रब नू पावन दा, सिख कद कोई याद ना। जदों तू रहेगा तो उसे ना गुरु रहना है, ना प्यार रहना है, ना मोहब्बत रहनी है, ना फिट गया तो फिर वो सामने आएगा, वो खड़ा है। बस आही नुकता
देने वास्ते बार बार उस परमात्मा को संतां नूं दुनिया ते भेजना पै रहा है। बार बार थानूं सूरज चढ़ता है। एक क्या करे फकीर ने देखिया कोई कहता जिहड़े रात नूं सौंदा सी ना ਉਹਦੇ कहता सी या परमात्मा ऐ वाहिगुरू अकाल पुरख आखिरी सलाम तेरे नाल तेरा मेरा हुण आखिरी सलाम क्योंकि रात पै गई हुण पता नहीं सवेरे उठना है कि नहीं उठना। बोलो आखिरी सलाम आखिरी दुआ आखिरी धन्यवाद कि तेरा धन्यवाद है कि तू मैंने देना देता और हम तेरा मेरा आखिरी सलाम है। सवेरे देखिए सवेरे नहीं होना कहना देखी जाऊगी जो कुछ जो तो भावे दाई भलेगा। जिसले सवेरे उठना तो फिर उन्हें इन्ना नचना इन्ना खुश होना इन्ना मतलब खुश होना उस वेले सवेरे उठ के जरा तुम सवेरे उठ के कदे माले कहते भी सवेरे उठ के भजन करया करो सवेरे उठ के उसकी उस्ती करया करो सवेरे धन्यवाद दो उन्होंने कि उन्हें तुहानू रात नूं मुर्दियां नूं जिंदा कर दिता तुहानू मौका देता एक दिन का। बोलो तुहानू 24 घंटे होर वक्त दिते तुहानू मौका देता वक्त देता कि उठा उन्हें इन्ना नचना खुशी होना कि शुक्र है तेरा मालिक कि मैं तो समझे सी तेरा मेरा आखिरी सलाम हो गया पैसा मुड़ के फिर दर्शन मिलते हैं तै मुड़ के फिर मैंने अपने गाना ला लिया तै मैंने मुड़ के फिर मौका देता कि अगली पौड़ी होर चढ़ना। बोलो पर अभी तो मौका लग मुझे पीछे भी दौड़न का। बोलो साढ़े वास्ते दिन करा करता है सारा दिन घूमते फिरते हैं बोलो दुखी होते हैं नहीं नहीं एक घड़ी भी अगर सानू ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਲਈਏ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ कभी अंदर करिए उधर बोलो ठीक है कोई कोई खिंच रहा कोई खिंच रहा कोई तो थोड़े मगर आ रहा कोई आ रही है बोलो आ रहा कि नहीं आदमी बाहर निकल पिंडा चारे डाले फसे होते हैं। तो 10 दिशावां है 11वीं दिशा सानू गुरु दिता है प्रेम की दिशा ध्यान की दिशा आओ कहता मैं तुहानू 11वीं दिशा वल लेके चला रास्ता इस संसार में है 11वीं तुसीं कहोगे तुसीं बाबा जी 10 कहते 10 किधर है जरा गिन के देख लो कितनियां है इधर उधर 2 इधर उधर 4 थोड़े 4 कोने हैं ना एक थले ऊपर कितनियां में 6 हुई हैं तो जरा साइडां देख लो घुमा के जरा सारे पास देख लो घुमा के 10 दिशा वाला और 11वीं दिशा परमात्मा वाला है ये 10 ही दिशा सारियां 9 इंद्रियां ते 10वां दरवाजा वो दरवाजा खुलना 9 दिशा 9 दरवाजे बंद करने हैं 9 दरवाजे ताबत रहाए 10वें निज कर वासा पाए उथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावे गुरबाणी सन दस 9 दरवाजे नवे दर पी के 9 दरवाजे नवे दर पी के रस अमृत 10वें उस एक ओंकार में जाना है उस ध्वनि के नाल जाना है वो एक ओंकार की ध्वनि की चाबी उत्थे लगनी है फिर सतनाम के घर का दरवाजा खुलना तो पहला खुल नहीं सकेगा। बोलो पहला नहीं खुलेगा ओंकार की ध्वनि विच मस्त होके फिर उत्थे जाना है। और एक गल है जब तक तुसी प्रेम के वस्त्र नहीं पहनोगे जब तक प्रेम के रंग विच नहीं रंगे जाओगे उन्नी देर तक उस घर में तुहानू कबूल किसी ने करना है। जदों तुसी विचों हंकार लैके गए जदों नफरत लैके गए जदों मतलब गैर लेके गए तो उन्हें धक्के मार के बाहर कटना बोलो कहना तेरे विच क्यों एक गल याद रखो ओदे वास्ते ही दरवाजा खोलिया जाता है जिहदे विच मैं आप होवे जिहदे विच हो आप होवे अपने वास्ते दरवाजा खोलिया जाता गैरां वास्ते कदी खोलिया नहीं जाता। आही तो टाइम नहीं समझाया सानू बोलो गैरां वास्ते कौन खोलदा पर असीं 11 वास्ते दरवाजे खोले होए आ अपने वास्ते बंद कीते जो साडा आउंदा है जितना असी तुरना है उदों साडे दरवाजे बंद है तो जो 11 होंगे असीं खोल दिंदे अभी समझ नहीं मेरे वीरो आओ उल्टे रास्ते ना चलो 11 वास्ते बंद करो तो अपने वास्ते खोल दे आखिरकार क्यों क्योंकि तुहाडे अंदर आप बैठा एक ख्याल होर कर लो कि जिहनूं तुसीं हाका मारदे फिरदे हो लभदे फिरदे हो तुहानूं लभदा फिरदा है। बोलो वो तुहानूं लभदा फिरदा अज दा भी लभदा है सुनो ओदा लभना ही ओदा नजारा है आ खेल इसे करके रख लिया है तुहानूं मोड़ मोड़ के क्यों दुनिया में भेज रहा है क्यों वक्त दे रहा है क्यों मुड़ मुड़ के तुहानूं इस तरफ लेके जा रहा है वो तुहानूं इसे करके कि मेरी बात आज पूरी हुई है
बोलो ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਇਸ ਤਰਵੇਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਜਨਮ ਦਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, कोई तो तो गया नहीं, उसे दो नदियां दिस रही, चीज दिसती है नहीं। देखो त्रिवेणी कहते हैं, क्यों उनकी कहते हैं त्रिवेणी पर दो नदियां दिसती हैं, गंगा और जमुना, सरस्वती है नहीं दिसती। बोलो फिर अपनी अखा जाकर देख लो, नहीं दिसती हो, क्यों? और ये तीसरी त्रिवेणी सानू दिसती है नहीं, लेकिन वो बढ़ रही है धार साडे अंदर, लाजमी बढ़ रही है, वो नहीं सानू दिसती। सानू दिसण वाली बाहर की चीज है, अंदर की चीज देखी नहीं। जो गुरु नानक साहब ने गल की हमने ऐसी देखी, अरे समझ के नहीं। जो रविदास जी ने कहा मिलाप, वो जगह एक है जिथे संगम होना है। वो जगह कितने है? अखा तो ऊपर, वो जगह इत्थे है, इत्थे नहीं है, वो अंतस्करण में है, वो हृदय में है। वो हृदय आते इत्थे रहने हैं, लेकिन नुकता कितने साथ कितने बजरी जाके एक अंतस्करण में। बोलो देखते तुम ध्यान गुरु तुम इतने लाने को कहता है, यही तो गल नहीं समझी। पर सट कितने बजती है? पहली सट कितने बजेगी जिन्हें तुम ध्यान लाओगे, कभी किसी ने ध्यान ला के देखे नहीं मेरा ख्याल हाल तक। जो भजन से पहले ध्यान ला पहली सट कितने बजती है? बोलो पहली सट इंद्री चक्कर से बजती है। बोलो पर तुम भजन किया नहीं, ध्यान नहीं लाया, पहली सट कितने बजेगी? इंद्री गुला चक्कर से, उत्थे इंद्री चक्कर से बजेगी, ब्रह्म से जाके बजेगी, उत्थे जाके बजेगी। और कई बार ये फकीर लोग क्यों देख सकते हैं? बोलो क्यों देखते हैं? क्यों? पहली साइड जो बजनी है थोड़ी देर काम पाठना जग नहीं जाएगी। एक ख्याल करके देख लो, जो भजन बैठोगे जो ध्यान दोगे, पहली साइड इंद्री चक्कर से बजेगी, थोड़ी काम पाठना जाएगी, थोड़ा एकदम मन लैके तुरेगा, थोड़ी सीमी वाला। बोलो जरा ख्याल करके देख लो, तुम ये गल सोची कभी नहीं है, थोड़ा काम पर ध्यान जाएगा या किसी पर ध्यान जाएगा उधरले पासे। दूजी साइड थोड़ी नाभि से जाके बजेगी, तीजी साइड थोड़ी हृदय से बजेगी जाके। जो जो ऊपर उठना शुरू हो गया, सट्टा इतों बंद हो जाएगी, ऊपर बढ़ने शुरू हो गया, हौली हौली कंठ में चलेगी, फिर तो बाद एकदम चक्के हिलोरा मार के ऊपर आ जाएगी। बोलो पर कभी किसी ने किया नहीं है, ना कभी किसी ने नहीं, पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ की पढ़ी जाओ, बस माला फेरी जाओ, पाठ करी जाओ, बस ताकि तमीज पाई जाओ, टूने टप्पे करी जाओ, इधर उधर घूम जाओ, ऐसा नहीं गल बनती है। जब तक अंदर नहीं बढ़ोगे, जब तक अंदर सट्टा नहीं तुहाडे पैणगे। हुण जोगी लोग कन क्यों पड़ाउंदे सी? बोलो किसी ने पता है क्यों पड़ाउंदे? कन पड़ाउण दा मतलब सी कि इत्थे कन्नां विच जो पढ़दे ते एक ऊर्जा पैदा होंदी, सट बजदी दिमाग दे विच। समझे कि नहीं? ये सारी चीज़ां नुक्ते सी इन्हां दे बाहरी आसन वगैरह क्यों लोग लाउंदे है? पर एक गल है, श्री गुरु रविदास जी ने या गुरु नानक साहब ने ये सारिया गल्लां नूं क्यों कट्टिया है? उन्होंने कहा नहीं, इदां गल नहीं बननी है तुहाडी। सिर्फ अपने अंदर उतरो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन है, मैं कौन है। जिधर तुम इधर तुर पे तो फिर तू कौन है यह पता लग जाएगा। क्योंकि जब तक अपने आप को जानोगे तो कोई जान नहीं सकते, असी गुरु को पहचान नहीं सकेंगे, असी गुरबाणी के एक भी अर्थ को कर नहीं सकेंगे। असी जो कुछ भी गुरबाणी से मतलब लै रहे हैं सब झूठा लै रहे हैं, सब गलत लै रहे हैं। चाहे मेरी गल का कोई इतराज करे चाहे कुछ करे, असी जो कुरान में लै रहे हैं सब गलत लै रहे हैं, असी जो गीता में पढ़ रहे हैं सब गलत पढ़ रहे हैं। क्योंकि साडी सोच जी है वो मतलब उत्थे तक ही सीमित है जिथे तक साडा दायरा अपना बनया है। तो जो कृष्ण की गीता साडे दायरे तो गुरबाणी साडे दायरे तो तुहाडा ये ख्याल है कि गुरु नानक साहब का साडा दायरा एक सी, यही तो बात है। क्योंकि असी जिथे बैठे हैं उत्थे नहीं, उन्होंने तो इस करके बाणी की रचना की है कि सानू इथों कढ़ लैण बाहर, वो तो निकले हुए, वो तो निकले हुए सी। जदों असीं उन्हां दे तरीके नाल चल के इथों निकलांगे, जदों असीं उस किनारे ते जाके खड़े होवांगे, फिर शुक्र करांगे कि रब्बा सानू पता ही नहीं सी गुरबाणी सानू की दस रही सी, सानू हुण पता लग गया। जदों तुसीं अपने अंदर के ज्ञान नूं परख लिया, जदों अपने अंदर की उस चीज़ नूं अपनी आत्मा नूं तुसीं परवर कर लिया, फिर तुहानूं पता लग जाना है कि जो कुछ बाहर हो रहा सी ये तां सिर्फ पानी रिड़कण सी, असल विच हुण पता लग गया कि मंथन की चीज़ हुंदी है। क्यों संत महात्मा सानूं ऐसा करवाउंदे सी, क्यों सानूं मतलब इस ढंग नाल चलाउंदे सी, ये हुण पता लग गया। इस चीज़ का सानूं हुण इल्म होया। इसका मतलब है कि जिधर तुहानूं ज्ञान हो गया, जिधर तुहानूं जाग आ गई, उधर तुहानूं पता लग जाएगा कि एक सुपना सी,
एक की थी, एक सुपना सी, एक प्रेम सी, एक झूठ सी, एक मतलब धोखा सी। अज असीं जिन्हां ने साक्षात जिन्हें देख लिया वो पत्थर के मूर्ति नूं किथे पूजदे बोलो झूठ चलाण की लोड़ नहीं है। जिन्हां ने अपने अंदर प्रकाश देख लिया उन्होंने बाहर अखा खोलने की लोड़ नहीं है। क्यों कि उन्होंने समझ लिया कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बात कर रहा सी प्रेम की, क्योंकि प्रेम उदों ही बात पड़ेगी। तो सब तो पहला प्रेम असीं करना किहनूं है, यही तो गल है। पहला असीं रब नूं प्रेम करांगे बात नहीं बनेगी, तो सब दुनिया खाली रह जाएगी। क्यों रब इहो जी चीज नहीं है जिहनूं फड़ के प्रेम कर लवांगे। तो जिहदे कदमां दे सिर रखना वो गुरु है। वो कौन है? गुरु। इत्थों आके असीं मतलब जिद्दण मैं एक लफ्ज़ तुहानूं दस देना चाहुंदा, जिद्दण लोकां ने कुरान नूं पढ़ना शुरू करता ते इस्लाम धर्म मर गया, खत्म हो गया। जिद्दण गीता पढ़नी शुरू हो गई तो कृष्ण गया, हिंदू धर्म गया। ये क्यों डुबदा जा रहा है? जिद्दण असीं गुरु ग्रंथ साहब ते टेक रख लई ना उदण मतलब साडा है सिख धर्म। मतलब क्यों टेक रखी? क्योंकि साडी टेक गलत है। असीं गुरु ग्रंथ साहब दे ताबिया हो के कसम खा के भी ओट भी रखी फिर भी मतलब होना सी जिन्हां शब्दां दी असीं मतलब अंदर जिन्हां नूं अपने हिरदे च उतारना सी वो शब्द तां असीं ना उतारे, वचन तां ना उतारे, पर असीं कागज घोल घोल के पी जाने आ, तवीज पीना कुछ नहीं बनना। मतलब बात खत्म हो गई। क्योंकि असीं अपने अंदर सुच्ची आत्मा नूं जगा के वो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है साडे अंदर जो लफ्ज़ों के पीछे तस्वीर है वो घुट असीं पीना सीगा। मतलब वो सानूं नशा दिंदी है। तुहाडा ख्याल है कि शराब नशा दिंदी है? बिल्कुल बात गलत है। शराब में नशा है ही नहीं है। नशा सिर्फ इको ही चीज विच है, दुनिया च होर नशा किसी चीज विच है नहीं है। लेकिन ये नशे जिहड़े बाहर के झूठे नशे है। शराब का नशा सिर्फ दिखावे का नशा है। बोलो शराब का नशा दिखावे का नशा है। ये सिर्फ आदमी की बुद्धि को खराब करने वाला नशा है। पैसे का नशा, दौलत का नशा, ये सारा नशा ही होती है। बोलो अहंकार का नशा, ये नशा है। ये कुर्सियों का नशा, आ कुर्सियों के नशे पीछे सारा कुछ हो रहा। कितना कतलो गारत हो रही है, कितना बेईमानियां हो रही है, कितना नड़दौड़ लगी हुई है। ये नशा ही तो है होती है। जिधर उतर गया उधर पता लगता है, जिधर कहते नहीं होगा बस कुछ भी रहना पड़े। बोलो ठीक है, फिर की करोगे? कहते नशा करोगे। नशा एक ही है। गुरु नानक साहब ने नशा जिसनों किया उस नशे को, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस नशे की गल की और नशा उन्होंने अमृत का नशा जो सानू दिता सी। उन्हें क्या अमृत नाम महारस मीठा। उन्हें प्रेम का नशा दसिया। सब तो बड़ा नशा है प्रेम का। सब तो बड़ा नशा है नाम का। नाम प्रेम या और कोई चीज नहीं है। नाम की है प्रेम। मैं पहले प्रेम की गल की थी। क्यों भंग अफीम पोस्त भंग अफीम मद उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी जाए। और प्रेम की खुमारी। लेकिन इतने प्रेम भी नशा बना लिया लोगों ने। बोलो प्रेम की कर लिया, नशा बना लिया। प्रेम भी अधूरा रह गया। प्रेम दुकानदारी सौदा कर ला पाया प्रेम का। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहे? सच बोलो। प्रेम तोड़ना शुरू करता तकड़ियां में। प्रेम के तकड़ियां भी तोड़ता है। रब के तकड़ियां किताबों में बंद होता है। रब के सीमा रखा हुआ है। तुसीं आनंद नूं की करोगे? बोलो किहड़ी लिखत विच लैके आओगे? इस करके वो जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी मैं पहलों गल दस्सण लग्या सी कि जिसले गुरु ते प्रेम हुंदा है तो फिर अखां दसदियां है। मतलब साडी जुबान बोलती खुदा रटन, फिर हौली हौली प्रेम जिहड़ा है वो साडे जिहड़े अंदर विचर जाता है। तो फिर जुबान बंद हो जाती है, फिर अखां रोणियां शुरू हो जांदियां। बोलो अखां रोंदियां फिर अखां भी रोणों बंद हो जाती। क्यों? वो गल फिर एकदम आदमी गुम की हो गया, गुम हो गया। वो फिर हो गया उसे गूंगा बन गया। की बन गया? गूंगा। बस फिर वो गुंग जेड़ा गूंगेपन विचों आनंद है और किसी चीज विचों आनंद है नहीं। जेड़ा निर्विचार विचों आनंद है, खुशी सिर्फ निर्विचार विच है। और किधर जदों तुहाडे विचार चलदे तुसीं कदी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि विचारां नूं तुहानूं नींद नहीं आती। जदों निर्विचार हो जाओ आनंद आ गया, जदों चुप हो जाओ आनंद आ गया। चुप ये नहीं मतलब कि बाहरों जबान चुप करने तो लिख के रखना लग पाए एक ही होए चुप हो गया। बोलो ये चुप नहीं है। कई बार साधु देखे कई साल बोलते नहीं, वो बाहरों नहीं बोलते लिख के दसी जाते। गल तो दिल की दसनी है। बोलो बोल के दसी लिख के रखती इशारे में दसती। बोलो एक ही गल हो। चुप होना है तो ऐ होना है कि ना दिल बोले ना जबान बोले, फिर चुप होना। फिर देखो आनंद आऊंगा। जिधर थोड़ा दिल चुप हो गया
जिधर ਤੁਹਾਡਾ मन चुप हो गया, ये शांत हो गया, तो सारे सागर ਦੀਆਂ लहरां शांत हो गए। बोलो हो जाएगा कि नहीं? फिर कोई जहाज नहीं डुबना, फिर कोई जहाज नहीं डुबना। ਉਹਨੂੰ शांत करने वास्ते यही लफ्ज़ से वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार, ਇੱਕੋ ਹੀ जहाज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। हर्षो हीरा छड़ के करे आरम की आस, सै नर दोजख जाएंगे सच पाके रहता। एक कोई बोल रहा हुण इत्थे की गल है परमात्मा। हुण परमात्मा अल्लाह कह लो तो परमात्मा नहीं है, वाहिगुरु कह लो परमात्मा नहीं है, खुदा कह लो रब नहीं है। बोलो आखिरकार जिन्ने भी लोग है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मनते तो उत्थे रब दा पाप किस चीज दा होगा। बोलो नरकां क्यों जाएंगे? अल्लाह कहने वाले नरकां चले जाएंगे। बोलो राम कबीर साहब का मतलब कबीर ने क्या अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब दे गुजरिया कौन भले कौन होते नरकां चले गए। बोलो कितना अधूरा पर ताड़े क्योंकि अल्लाह कहे तो नरकां चले गए तो स्वर्ग च कौन गया जी मैंने दसो। जे कबीर साहब ही नरकां में चले गए वही नरकां के अधिकारी हो गए तो बाकी भी दुनिया का की हाल होगा। श्री गुरु नानक देव जी ने अल्लाह नहीं किया, एक खुदाए नहीं किया। बोलो नहीं किया, गुरबानी ध्यान की अल्लाह लिखे कितने खुदाए नहीं लिखे है। फिर वही खुदाए है, खुदाए खुद जो आ गया। खुदा कौन है? जो खुद आ गया, जेड़ा साडे अंदर चमक पे जेड़ा जेड़ा साडे अंदर रोशनी देती, जेड़ा सब जीवात्माओं को उजागर करता, वो खुद आ गया। साडे अंदर शब्द बन के उतरिया, साडे अंदर आत्मा बन के उतरिया, साडे अंदर प्रकाश बन के उतरिया, साडे अंदर प्रेम बन के उतरिया। क्यों? हज़रत यीशु मसीह कहते थे गॉड इज लव, पर असल में बात कमाए कहते लव इज गॉड। क्योंकि जब लव नहीं है तो होरी गल करती। कहते मैं उदों तो हैरान सी कि बूंद सागर में समा गई, ये तो गल बन गई, लेकिन मैं हुण ये हैरान होया कि सागर बूंद में समा गया। अगे मैं परमात्मा में लीन होया, बूंद वाहिगुरु में चली गई, सागर में चली गई, सतनाम में चली गई, वो कोई हैरानी नहीं सी। पर हुण मैं हैरान हो गया परमात्मा हुण मेरे विच आ गया। जान वाला नहीं है कोई, मतलब स्वर्ग में जाने वाला भी नहीं है। ये मैं तुम दस दें ये नरक और स्वर्ग की चीज है। एक आदमी मतलब मैं तुम दया गया कहना महाराज मैंने दसो कि मतलब नरक और स्वर्ग की चीज है। नरक और स्वर्ग एक ही चीज है, मैंने बेर करके दसोगे समझाओगे मैनू? वो कहता तू तो गधा है, कहता तू तो गधा है, तेन तो अकल नहीं, तू तो महामूर्ख आदमी है, तेरे वर्गा बिल्कुल जमना नहीं दुनिया के उत्ते आगे समझ गए। और लो जी बादशाह कहता मैं तो पूछ रहा बादशाह, बादशाह भी भाई कि गधा कहता, मूर्ख कहता, बेवकूफ कहता, हरामजादा कहता। बादशाह तो जी अपने आप तो निकलिया बस जो फट तलवार खिंच ली, एकदम बयान जो तलवार निकल गई, मुंह लाल हो गया, चेहरा बदल गया, भैंकर जहा रूप है जिले गुस्से जा रहा पता कि शक्ल होती है पीछे देखा हो मुंह अपना तुम होर नहीं ले जाते, तुम होर ही बन जाते हो, बन जाते हो कि नहीं? जरा गौर करो लफ्ज बादशाह का रंग तब्दील हो गया, काला स्या रंग हो गया, बड़ा गुस्से से ठत्तर कंबल लग पिया, जिले तलवार चकी फकीर के मार लगा फट गया, रुक जा कहता आही का नरक होती है। बोलो आही का नरक है। यही तुम दिखाने वास्ते गल की मैं होगी किया ऐसा ना नरक है। आ देख रहा हूं तू नरक में नहीं खड़ा तो होर कितने खड़ा। बोलो कि तेन कख नहीं पता कि हूँ मैं कौन है, बोले साधु है या संत है, ऐसे तेरी शक्ल देखने वाली है, भयंकर रूप से धारण किया होया, बस आही लग गया होता है। एकदम चेहरा उतर गया, समझे कि नहीं? एकदम मतलब रंग बदल गया, गुस्सा कपूर हो गया, और मतलब ऐन देवता एक निमरताई की मूर्ति बन गया। शरीर में कहना मैं बादशाह आही सो गया, आही सो गया, और मतलब बेवर हो गए कि दसा यही चीज है। असि एक घड़ी नरक में छूने, दूसरी घड़ी स्वर्ग में छूने। सज्जनों जिन्होंने इतने भी एक गल समझी अगे भी नहीं समझणगे। एक मतलब फकीर सीगा, बहुत तगड़ा फकीर होया गुरचेप, वो कहता हुंदा सीगा ओ गल सुनो मेरे वीरो, जिन्हें इत्थे शराब नहीं पीती वो जन्नत विच भी जाके पी नहीं सकेगा। लो जी लोगों ने गल समझ ली, हुण सानू शराब दी छुट्टी हो गई, हुण जिन्नी मर्जी पियो, समझे कि नहीं? वो कहते पहले इत्थे पीनी सीखो फिर तुसीं उत्थे पीओगे जा, क्योंकि जिन्होंने इत्थे प्रेम नहीं किया उत्थे प्रेम का नजारा ही लै सकणगे, जिन्होंने इत्थे दीदार नहीं किया उत्थे कर नहीं सकणगे। बोलो कर सकणगे? जिन्होंने इत्थे जिंदगी का आनंद नहीं माणिया उत्थे की आनंद माणनगे। बोलो वो कहते इत्थे प्रेम इत्थे शराब पीनी सीख लो, जिन्नी तुसीं पीनी है रज के पियो। समझे? एक मुसलमाना का ठेका, ये ठेके देखो जिन्हें पीनी है कट के पियो, जिन्हें पीनी है कट के पियो, हथी बना के पियो।
और गुरुओं का बुरा ही नहीं जाना है, उससे कोई जाता पाता ने ठेके नहीं खोले मुसलमानों वास्ते हो ठेका हिंदू वास्ते हो रहा है नहीं। कबीर जी कहते होंगे सी कि आ जाओ जिन्हें पीनी है जिन्हें मेरे को मस्त होना आके, पहली बात यह है कि जिन्हें मेरे खिलाफ खाने जाना पहले अपना घर फूक के आयो बना के फूको घर अग ला के फिर मेरे को आओ, पर मेरे को पीढ़ी देसी मिलनी है भरावा, लेवल तो बगैर मिलनी है, डिग्री तो बगैर मिलनी है, जेड़ा हजम कर सकता आ जाओ। जिनको प्रेम खेलन का चाहो सिर तक कली कटड़ी नहीं आ जाओ इतने कुर्बानी की जरूरत है, पर कुर्बानी कहनी लगी सिर दी नहीं, कुर्बानी अपने आप की लगी, अपने हंकार की कुर्बानी दे दी, अपनी मैं की कुर्बानी दे दी, मैं मार के सिर आपे कट गया, सिर ही मैं और कोई मैं नहीं है, कुर्बानी इसकी देनी है। एक कुर्बानी दी साढ़े गुरुओं ने साढ़े संता महात्मा ने एक कुर्बानी दी, उन्होंने मैं खत्म करती सकते हैं। सुनो जेडे लोग नदिया त्याग देंगे, जेडे सब कुछ छड़ के नंगे होके अल्फ नंगे होके आएंगे, जेडे जरा कोई अन्य दुनिया चीज नाल जाती ओ कोस लख आने में तो पी नहीं सकता, बोलो ओ नहीं आ जाओ तो आओ देखो देखो तो कोई नशा चढ़ता कि नहीं, तुसी नशा लेना है। मैं साडा मतलब इको ही होता है, सानू लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर सज्जनों मैनू किसी नाल कोई वैर विरोध नहीं, मैं तो अगर मैनू मुसलमान के घर विचों मिले मैं उत्थों ही पी लेना, अगर हिंदुओं के घर चो मिले मैं उत्थों ही पी लेना, मैं कृष्ण वाली भी पीती है, मैं गुरु नानक साहब वाली भी पी लिया, मैं रविदास वाली पीती, मैं कबीर वाली पीती, मैं मोहम्मद साहब का भी रस मान रहा, मैं मतलब यीशु वाली पीती है, मैं महात्मा बुद्ध के ठेके से भी गया, मैं मतलब महावीर के ठेके से भी गया, क्योंकि जेड़ा शराबी उनका ये थोड़ी ज्यादा वो ठेका खेला है, बोलो उन्होंने कभी नहीं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣ ਵੇਲਾ ਆਈ ਹੈ, की है जागो वेला आई है, ये वेला है जागण का, जे हुण ना जागे तो फिर कदों जागोगे, हुण तो दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, हुण तो मतलब सवा भी आ गया, हुण तो सिर ते काल फूक रहा, हुण भी जागो जाग पाओ। आदमी उदे मौत के मुंह चला गया जन्म लिया, लोग जन्मदिन मनाते हैं, इन्ने साल का हो गया नहीं रोबो, साल का नहीं होया, एक साल विचों कट गया, बोलो कट गया, वक्त तुहाडे कोल निकल गया, सत्संग का वक्त तुसीं ईर्खा विच गवाता, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਖੋਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਗਵਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੋਲੋ ਉਹ ਘੜੀ ਗਵਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਗਵਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਕਤ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਜਵੇ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, उठो अपने अंदर प्रेम पैदा करो और ध्यान में खो जाओ, क्योंकि जितनी छेती हो सकता है बंदे को अबूर कर लो, क्योंकि अगले स्वास्थ्य का कोई पता नहीं है फिर आना है कि नहीं आना है। ये जिंदगी को बदल दो, आज ही बदलो, हुणे ही बदलो, वहम कर दो, ये मतलब ख्याल कर दो, ओ भाई तुहानू तुसी ये ख्याल कर लो, ये घुट जिहड़ा हुण मिल रहा है ये फिर नहीं मिलना, की पता साकी बदल जाए, बोलो ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ ਸਾਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਕੀ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਮਾਨੇ का, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ काम करती है। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ। देखो तुसी अगर अमृत नाम नु पीना है तो चाहे अल्लाह कह के पियो, राम कह के पियो, वाहिगुरु कह के पियो, क्योंकि लफ्ज़ मुक जाने हैं, गल तो प्यार में लेके जानी, बोलो ठीक है, लफ्ज़ खत्म हो जाए, लफ्ज़ थले थले ही है, उसे का कोई लफ्ज़ नहीं है, उसे का आनंद है, उसे का जोत जग रही है, एक मस्ती है, एक बहार खिली हुई है। मैं चाहना है कि तुहाडे सारे दे विचों दी ओही कोई खुशबू नजर आवे, चाहे मतलब तुसी बाग विच निकल जाओ, बस हर एक इना होवे कि तुसी घर दे खेड़े फुल जिहड़े खेतां विच ना आपे उन्होंने क्या फुल नहीं, गुलाब का फुल चंगा नहीं, जिहनूं कुदरत ने खिलाता वो चंगा ही चंगा, आगे जिंदगी ने कबूल करके चढ़ाया है, उन्हें कबूल किया है। और नवी गल एक होर सुन लो कि अगर तुहानूं मनुख जन्म दिता है तो तुहानूं कबूल किया उसने,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਡੋਲੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੀਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨੰਦ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਡੋਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? आ गई समझ गए? मतलब की है परमात्मा ने अपना काम करता, गुरु ने ताला खोल दिता, भाई हुण तुहाडी मर्जी लुट लो, लूटना है तो लूट ले, नहीं तो राम नाम की लूट फिर बंदे पछताएगा जब प्राण जाएंगे। लूट फिर की करोगे, वक्त निकल गया था, बोलो आओ फिर गोडिया से हाथ रख के उठना पै जाना, फिर भजन कितों होना, बोलो ठीक है कि नहीं? फिर जब किसी का सहारा ही दूसरे का मंगना पेगा, भजन कितों करोगे? भजन का मतलब ये है तंदुरुस्ती चाहिए है, बोलो ठीक है कि नहीं? मेल मिलाप चाहिए है, प्यार चाहिए है, प्रेम चाहिए है। अगर जितने जिस घर में फुट पै जाती है वो घर उछड़ के रह जाता, बोलो ठीक है? इसका मतलब है कि घर की फुट नूं ना पैण दिओ, क्योंकि तुसीं सियाणे हो और आपस में प्रेम और प्यार ना रहो। जो कुछ साडे गुरु और संतां दा पैगाम है, साडा जन्मदिन मनाउण दा, गुरपुरब मनाउण दा, यही मतलब है कि असीं उन्हां गुरुआं दे वचनां नूं याद करके जो साडे कमियां रह गईआं उन्हां नूं हर साल ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮਨਾਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲਓ। ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, जिन्नी जल्दी हो सकता है, ये नफरत खत्म करो, ईर्खावा खत्म करके सिर्फ अपने आनंद में मस्त होके अपने अंदर उस जोत को प्रगट कर लो। जिन्हें सुती हुई मतलब चेतना जगा लो, क्योंकि जागोगे तो गल बननी है, ताकि परमात्मा तुहानू कबूल कर और तुहाडे अंदर वो रंग चढ़ जाए, ताकि तुहाडा जीवन सफल हो जाए। जिस वास्ते तुसीं दुनिया ते आए हो, ये मकसद पूरा हो जाए। जे नहीं पूरा किया तो मुड़ के फिर आना फिर आना करना है। एक ख्याल कर लो, इको बारी ढिड भर लो रज के, ताकि मुड़ के चूल्हे मुड़ रह जाना पवे, क्यों नहीं तो मुड़ के फिर आना पैना है। इस करके सबर का खाना एक बार खा लो और फिर मुड़ के दोबारा ना तुहानू झकना पवे, मंगना ना पवे। पता नहीं है अगला बेटा कितना जाना, फिर खरी जी होना तो परे कहा तुहानू ना पूरी हो देरी करोगे। और तुहाडे हर गुनाहां नू मतलब मेरा मालिक माफ करते हुए और तुहानू तौफीक बख्शे, ताकत बख्शे उस रब दे घर विच जाण वास्ते, भजन और बंदगी करन वास्ते, अपनी जिंदगी नूं सवारन वास्ते। इस ईर्खा दे जाल तो निकल चलिए, जींदे जी इस धरती नूं स्वर्ग बना के अपने घरां च आनंद लै लो और फिर पता नहीं आनंद आउणा करे। मालिक तुहाडे ते रहमत बख्शे और मेरी बंदगी है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।